ये हेल्थ एशिया की 11वीं कॉन्फ्रेंस है। 11 साल हो चुके हैं इनको ये करते हुए, और तकरीबन 7-8 साल से हम भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं और गायनी का सेशन करते रहे हैं हर साल से हम लोग सब, हमारा ग्रुप पूरा मिलके। और आप सब लोग भी जानते हैं, आप सब लोग यहाँ आते रहे हैं और देखा है आप लोगों ने, तो होपफुली इसी तरह चलता रहेगा। SOGP को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कई दफ़ा की गई, लेकिन कोई ख़ास नहीं हो सकी। इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन अगले साल SOGP का यहाँ मेरा ख्याल है एक स्टॉल भी होना चाहिए सोसाइटी का, और इस तरह के सेशंस भी SOGP के प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। तो आई विल स्टार्ट नाउ। तो दिस इज़ द टॉपिक, क्रिएट योर ओन ब्लू जोन। अब बात यह कि ब्लू जोन क्या होता है? ब्लू जोन वो होता है जिसमें ऐसे लोग रहते हैं, जिनकी एज यू कैन गेस, और उनका ब्रेन, उनकी आँखें, उनका शौक़, उनका जज्बा, उनका सिंगार और बालियों के साथ, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस एज में भी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये लोग हैं, वो हैं जो ब्लू जोन वाले होते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ ब्लू जोन। Blue zone are the regions in the world where people have claimed to live longer than average, and there are only 5 places in the world जहाँ के लोग काफ़ी लंबा अरसा जिंदा रहते हैं और खूबसूरत ज़िंदगी के साथ जिंदा रहते हैं, जो कि हम सबका ड्रीम है, हम सबका ख्याल है कि ये जो 5 एरिया हैं दुनिया में, इसमें लोग कैसे अच्छा लॉन्जेविटी के साथ जिंदा रहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इट पॉसिबल that longevity will exist in humans? एक एवरेज लाइफ है इंसान की, क्या उससे ज़्यादा वो जिंदा रहता? नहीं आ रही आवाज़? अब आ रही? क्या एक एवरेज लाइफ जो इंसान की है, क्या वो उससे ज़्यादा जिंदा रह सकता है? और अगर रह सकता है तो क्या वो खुश रह सकता है? तो एज आई सेड, देयर आर 5 places all over the world जहाँ लोग 100 years से ज़्यादा पहुँच जाते हैं, and they are happy, healthy and active. They have no diabetes, no hypertension, no obesity and no dementia. So how come? So these people are called centurions, and there are तकरीबन nearly 573,000 people all over the world who are centurions. Largest number is in Japan. What is the secret? Their diet, their physical activity, health, or there are other factors which may be causing this healthy and beautiful life for them. So what is the secret? Let us see what is the secret, and we'll try to find that secret and apply on ourselves, and I will show you the examples also and how it happens. So healthy aging is, what is this? You want to be well and you have larger expanded health span. जितनी भी लाइफ आपकी है उसमें से हेल्थ स्पैन ज़्यादा होना चाहिए और सिक स्पैन बहुत कम होना चाहिए। तो morbidity should be compressed, and one should be happy, and community should be happy with community. This definition fits in healthy aging. And what are the diseases of healthy aging? Heart disease, dementia, diabetes, and obesity. So can we have this type of life without these diseases? Let us see. So according to researchers, 20% of it is gene. Look, only 20% of gene is relevant to aging. The others is 10% is personal choices, 10% is healthcare system of the country, and 60% is the environment which we create for ourselves. This is the chromosome, and every chromosome has 4 corners, and every corner has a cap on it, tip, which is called telomeres, and this length of this telomere determines the aging and health. So as a person grows, every time whenever this chromosome divides, this length decreases, and with time span, the length of telomere becomes shorter and shorter. Shorter the telomere, the life is miserable and short. So biology of aging, it says cell age regulating factors are telomere, mitochondria. These 2 are by a genetic and cellular function. And then epigenetic, inflammations. These are the things which can cause from the environmental effect.
of inflammation, epigenetic, and healthy aging. So the telomere shortening every time, mitochondrial impairment every time when cell divides, but then systemic inflammation and epigenetics can alter this for the good side or bad side. So what could be a secret of longevity? If we apply biological rules, it has been seen by the researchers that positive outlook of life can cause healthier, longer life, and that is due to faith, purpose, and unwindness. स्ट्रेस सबको होता है, स्ट्रेस से अनवाइंड होना आना चाहिए, स्ट्रेस को रिलीज करना आना चाहिए. दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको स्ट्रेस ना होता हो, लेकिन इससे रिलीज करना आना चाहिए. एवरीबडी शुड बी मूविंग नेचुरली, कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम नेचुरली. नॉट ये कि बस जिम जाके ही हम मूवमेंट होगी, वरना कोई मूवमेंट नहीं होगी. ईट वाइजली, आई विल गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, एंड हैव कनेक्शन विद पॉजिटिव माइंडेड पीपल्स, पार्टनर्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. तो इफ वी लुक एट द डाइट, अच्छा अब इस डाइट को देख के आप जब फैसला कीजिएगा कि हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं और क्या ये हमारे कंट्रोल में है. और अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो हम इसको ठीक करके क्या अपना ब्लू जोन क्रिएट कर सकते हैं. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. प्लांट बेस्ड डाइट विच हैज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स, legume, vegetable, fruit, nuts, tubers, all these things are good. We should avoid meat, processed food, refined food. जो ये चीज़ें जो हम सारा टाइम खाते हैं. Plant based oils should be used. एक ज़माने में सरसों के तेल में खाना पकता था, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, अब पता नहीं क्या होता है. स्वीटनर, अगर लेना ही है स्वीटनर तो हनी इज़ गुड इनफ. इसके अलावा कोई स्वीटनर ठीक नहीं है. हमारी बॉडी को किसी किस्म के शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको पता है चाइना की आबादी कितनी है? हमसे कहीं ज़्यादा है, और शुगर कंजम्पशन उनका हमसे 1/4 है, हमसे 1/4 है. तो हम इतनी मिठाई की दुकानें, इतनी मिठाई की दुकानें मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं होती होंगी जितनी पाकिस्तान में होती हैं. तो वी डोंट हैव टू हैव स्वीटनर एट ऑल. होम मेड फूड, होम गार्डन, जो सबसे हेल्दी फूड जो होता है वो आपके अपने किचन का होता है. दुनिया का सबसे हेल्दी फूड आपके अपने किचन में बनता है. जो भी फूड बाहर से आता है वो कभी भी हेल्दी नहीं होता है. स्टॉप ईटिंग व्हेन स्टोमक इज 80% फुल, साइंटिफिकली प्रूवन. हमें कब बताया गया था? हमें 1400 साल पहले बताया गया था कि स्टॉप ईटिंग व्हेन स्टोमक इज 80% फुल, एंड मेकिंग दीज हैबिट्स अर्ली इन देयर लाइफ्स. इसका मतलब हम अपने बच्चों को इस पैटर्न पे अभी डालेंगे तो उनकी फ्यूचर हेल्थ और लॉन्जेविटी पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है. हम अपने बच्चों को बचपन से ही मिठाइयाँ, चॉकलेट मिठाइयाँ, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक पे डालना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा होकर उसकी आदतें तो ख़राब होनी है ना. और फिर इसके साथ इसको तो चेयर थोड़ा पीछे कर देंगे, ये इसको थोड़ा पीछे कर देंगे. तो दीज बायोलॉजिकल, ये तो पीछे चला गया. So with these type of habits, with better diet, you have lower rate of diabetes, lipidemia, colon cancer, and hypertension. And another thing, eating with family and expressing gratitude. इन सारी कम्युनिटी में ये जो 5 ब्लू जोन है दुनिया में, इन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है कि दे ऑल ईट एज ए फैमिली डिनर या फैमिली लंच. सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं. और फिर और कम्युनिटी में भी इस तरह की ओकेजन्स होती रहती हैं. एंड दे ऑल एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. जब भी खाना खाते हैं तो खुशी से खाते हैं. जापान में खाने को बहुत इज्जत दी जाती है. वो खाना खाने का टाइम उनका बहुत ही प्रेशस और मुक़द्दस टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है. वो उसको ज़ाया नहीं करते हैं कि खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और खाना भी ज़ाया नहीं करते हैं. इसलिए खाना ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि इसकी सेंक्टिटी है, खाने के टाइम की सेंक्टिटी है. उसको बहुत इज्जत से बैठ के खाना चाहिए और बहुत ही खाना को ज़ाया नहीं होना चाहिए. ये जापान के कल्चर में शामिल है, और ख़ास कर उन इलाकों में जहाँ ब्लू जोन है. फिजिकल एक्टिविटी, दे मूव नेचुरली अप हिल और डाउन हिल. उनके घरों में चाहे स्टेयर्स हो, हमारे यहाँ लोग शिकायतें करते हैं, मैं 2 मंजिला ऊपर रहती हूँ,
अभी प्रेगनेंसी हुई नहीं, अभी से परेशानी शुरू हुई कि मैं 2 मंजिला ऊपर रहती हूँ। हर औरत का गम यही है कि उसके घर में 2 मंजिला ऊपर रहना पड़ता है उसको। हालांकि दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ कि आप ऊपर नीचे करते रहें, प्रेगनेंसी हो ना हो डजंट मैटर, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। मैनुअल लेबर, walking, horse riding, cycling, everyday chores of their own, cooking, cleaning, gardening, chopping wood, whatever physical activity, this is part of their life. हम अपनी ज़िंदगी से मशीन्स को ऐड करते जाते हैं और इन पार्ट्स जो फिजिकल एक्टिविटी वाले चीज़ें इनको निकालते जाते हैं। स्पोर्ट इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट्स एंड एल्डरली। एवरीबडी हैज डज सम स्पोर्ट। So they have longer telomere when they have positive relations, they have strong social support, when they feel love and loved, long and happily married and sexual intimacy. These people have longer telomere than they have longer life and healthy life. Another important thing, whenever an old person enters in nursing home, it takes 2 to 6 years of their life away. फौरन ही उनकी लाइफ में 2 से 6 साल की कमी हो जाती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। So now what they are doing, they have no nursing homes. Their olds live with their youngs, and elders are treasures. Community and traditions जैसे हमारे यहाँ पहले हुआ करता था, अब ये खत्म होता जा रहा है। और elders work till they can. No question of retirement, no concept of retirement. और अगर आप गौर करें तो हमारे मजहब में, रिलीजन में भी रिटायरमेंट का कोई सवाल नहीं है। ना हमारे यहाँ संडे ऑफ है, फ्राइडे ऑफ है, हमें कोई छुट्टी का दिन नहीं होता और हमारी कोई रिटायरमेंट नहीं होती। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए हेल्दी पर्सन। लोग मुझसे पूछते हैं रिटायरमेंट कब है, मैंने कहा वो क्या होती है, रिटायरमेंट किसको बोलते हैं। वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग विद प्रेजेंट। पास्ट का गम लगा हुआ है, फ्यूचर का खौफ लगा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में जिंदा रहें, पार्टनरशिप बिल्टअप करें। यू हैव टू हैव गुड हैबिट्स एंड यू हैव टू बी विद एक्टिव पीपल। वॉलंटियर वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है हेल्दी लाइफ और हेल्दी एजिंग के लिए। कम्युनिटी के साथ रहना, ईटिंग टुगेदर एंड मस्ट हैव सम हॉबी। हमें से कितने लोग इनकी कोई हॉबी है? वेरी गुड, कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, वेरी गुड, वेल डन। कुछ लोगों ने हाथ उठाया। हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए जो कि हमारे प्रोफेशन से अलग हो। हम अपने प्रोफेशन को अपनी समझते हैं कि बस यही काम हमें करना है, ऐसा नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस। हम क्यों जिंदा हैं? हम सुबह उठते हैं तो क्यों उठते हैं? हमने क्या करना है सुबह उठ के, और फिर कल क्या करना है, परसों क्या करना है। So what is the purpose? Why are we here? So they have found their something that they enjoy, give them something to do, and that helps the community, and that keeps them motivated. When they help community, they get some gratitude, they get back some gratitude, and that keeps them motivated and happy. So this is the move naturally, by hand, gardening, walking. Outlook should be unwinding, faith and purpose. One has to relieve their stress, has to release their stress, otherwise stressful life में तो बहुत problem है। Eat wisely and connect with community, connect with humans, live together. So now how do we create your own Buddhism? USA में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वाइटलिटी टेस्ट किया लोगों का, तकरीबन 20,000 पीपल। They did this study. They were aiming to increase life expectancy by 2 years. What they did, their intervention was changing environment, created walking place, new friendships, daily outdoor exercise, volunteering opportunity, healthy grocery stores, and 1 year later, जो vitality test उन्होंने दोबारा किया तो life expectancy has been increased 3.1 year per person, average life. So they created their own blue zone. That was on a community level of 20,000 people. And now look at the country level. Singapore, they are the happiest, richest people with longest life expectancy in an urban society. But इनके politicians ने और laws change किए गए. They limit the amount of sugar, subsidize brown food, healthier options in restaurants and vendors. They increased car prices, increased driving license, so everybody cannot afford car. You have to walk to the public transport. And public transport is very robust and accessible and very good. So everybody has to walk 15 minutes for public transport. Government sponsored exercise program, community program, sports, and living with family and grandchildren. अगर कोई
कोई कपल अपने पेरेंट्स के पास घर खरीदना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों के पास घर खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। So they have started living near the family. And so what they found: primary care, prevention and health, vaccine, child nutrition. They have found fewer morbidities, stress reduced, few hospital visits, low rates of Alzheimer, and more time available for activities and happiness. So they created their own blue zone. So can we do it? Healthy longevity is achievable, and anyone can create your own blue zone. You want to extend healthy span and compress disease span. You have your personal choices. You could start at any age. You have to have community choices, stress release, happiness, optimism, care of elderly, gratitude, faith, and purpose. These are the main things. These few points which your behavior has to be changed, and positive attitude has to be achieved. So thank you very much, and have a nice blue zone.